नमस्कार, मैं अमृता मैम चैनल से एकांश बोल रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं स्क्रू प्रोफाइल से ट्रांजिशन जोन। द ट्रांजिशन और कंप्रेशन सेक्शन where the channel depth is continually decreased completes the compacting and heating of the plastic granules. Here, all the remaining air is released as a result of heat supplied by the cylinder heaters and mechanical energy supplied by the rotation of the screw. Normally, a transition zone encompasses approximately 25% of the screw length. When the material leaves the area under the hopper, it only partially fills the screw. After about 4 turns, the material is fully compacted. The material touching the barrel melts by conduction. The heating occurs in two ways. One is the convection of heat from the heater barrel. The second is the conversion of mechanical energy from turning to screw into energy by shearing the plastic. Since the same weight of material per unit cross section must flow through the whole length of the extruder, and since the bulk density of the unmelted portion is less than that of the melted portion, the unmelted portion must be moving at a faster rate. आइए इसे समझते हैं। संक्रमण या दबाव क्षेत्र जहां चैनल की गहराई लगातार घटती है वो प्लास्टिक कणिकाओं के कॉम्पैक्टिंग और हीटिंग यानी जलने को पूरा करती है। यहाँ सारी बची हुई हवा छोड़ दी जाती है जो कि सिलेंडर द्वारा हीट सप्लाई और स्क्रू के रोटेशन का परिणाम है। सामान्य रूप से संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत कई लगभग स्क्रू की लंबाई का 25% होता है, जबकि वस्तु हॉपर के अंदर के क्षेत्र जब वस्तु हॉपर के अंदर का क्षेत्र छोड़ती है तब वह स्क्रू को केवल आंशिक रूप से भरती है। लगभग 4 टर्न्स के बाद वस्तु पूरी तरह जमा हो जाती है। वस्तु जो बैरल को छू रही होती है वो कंडक्शन द्वारा पिघल जाती है। हीटिंग दो तरह से घटती है, एक है कन्वेक्शन से हीटर बैरल द्वारा, दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी को बदलना स्क्रू की घुमाव द्वारा उस एनर्जी में जो कि प्लास्टिक की शेयरिंग द्वारा बनती है। क्योंकि वस्तु का समान वजन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन बहना चाहिए पूरी एक्सट्रूडर की लंबाई के माध्यम से, और क्योंकि ठोक घनत्व बगैर जमे हुए हिस्से का काम है, जमे हुए हिस्से से बगैर जमे हुए हिस्से ज़्यादा तेज़ दर से चलना चाहिए। अब आते हैं मीटरिंग जोन पर। Metering zone section is also known as mixing zone, helps for homogeneous mixing of the materials and acts as a pump removing the material plasticized in the transition zone. मीटरिंग जोन को मीटरिंग क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि वस्तुओं की होमोजीनियस मिलावट में मदद करता है और पंप की तरह कार्य करता है, जो कि उन वस्तुओं को हटाने में काम आता है जो कि संक्रमण खंड में प्लास्टिसाइज होता है। अब आते हैं L/D रेशियो में। The L/D ratio is the ratio of the flighted length, effective length of the screw to its outside diameter. The ratio calculation is calculated by dividing the flighted length of the screw by its nominal diameter. Although several injection molding machine manufacturers now offer a choice of injection units, most injection screws use a 20:1 L/D ratio, but it may range from
18:1 to 24:1, and in the case of thermoset it may range from 12:1 to 16:1. The effect of changing L by D ratio is summarized in the following manner. The larger the L by D ratio, longer the flighted length. More shear heat can be uniformly generated in the plastic without degradation. Greater the opportunity for mixing, resulting in a better homogeneity of melt. Greater the residence time of the plastic in the barrel, possibly permitting faster cycles of the larger shots. आइए इसे समझते हैं। एल बाई डी रेशियो की फ्लैटेड लंबाई और उसके बाहरी व्यास का अनुपात है। इस अनुपात की गणना स्क्रू की फ्लैटेड लंबाई को नॉमिनल व्यास से भाग देने पर की जाती है। हालांकि कई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के उत्पादक अब इंजेक्शन इकाइयों का विकल्प देते हैं। ज़्यादातर 20:1 एल बाई डी अनुपात का इंजेक्शन स्क्रू इस्तेमाल करते हैं, पर वो 18:1 से 24:1 की रेंज में हो सकते हैं, और थर्मोसेट के मामले में वो 12:1 से 16:1 की रेंज में हो सकते हैं। एल बाई डी अनुपात को बदलने के प्रभाव को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप किया जा सकता है। जितना बड़ा एल बाई डी अनुपात होगा उतना लंबा फ्लाइटेड लंबाई होगी। ज़्यादा shear हीट यूनिफॉर्मली जनरेट हो सकती है प्लास्टिक में बिना किसी गिरावट के। मिश्रण का अवसर बड़ा होने के परिणाम स्वरूप मेल्ट की होमोजेनिटी बेहतर होगी। प्लास्टिक का बैरल में रहने का समय बड़ा होने पर संभवतः बड़े शॉट्स की और तेज़ साइकिल की अनुमति देता है। कंप्रेशन रेशियो यानी दबाव अनुपात। The ratio of feed zone channel depth to the last meter zone channel depth, or the first flight depth of the feed zone to the last flight depth of the melting zone, referred to as compression ratio, typically ranges from 1.5:1 to 4.5:1 for most thermoplastic materials. Most injection screws classified as general purpose have a compression ratio 2.5:1 to 3.0:1. Thermoset screws have 1:1 ratio. Higher the compression ratio, greater the shear heat imparted to the resin, heat uniformity of the melt, potential for creating stresses in some resins, and more energy consumption. फीड जोन चैनल डेप्थ और आखिरी मीटर जोन चैनल डेप्थ का जो अनुपात है, या फिर पहली फ्लाइट डेप्थ फीड जोन की और आखिरी फ्लाइट डेप्थ मीटरिंग जोन का अनुपात को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। वो ज़्यादातर संभवतः आम तौर पर ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक वस्तु की रेंज 1.5:1 से 4.5:1 तक होता है। ज़्यादातर इंजेक्शन स्क्रू को जनरल पर्पस में वर्गीकृत है। इनका दबाव अनुपात 2.5:1 से 3.0:1 तक होता है। थर्मोसेट स्क्रू के पास 1:1 अनुपात होता है। आगे की डिटेल्स। आगे हम पढ़ते हैं हायर द कंप्रेशन रेशियो ग्रेटर द, मतलब जितना बड़ा कंप्रेशन रेशियो होगा उतनी बड़ी shear हीट रेजिन को दी जाएगी। मेल्ट की हीट यूनिफॉर्मिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जो स्ट्रेस को बनाने का जो पोटेंशियल है कुछ रेजिन में, वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन यानी कि इस्तेमाल होगा। हेलिक्स एंगल इज़ द एंगल ऑफ अ स्क्रू फ्लाइट रिलेटेड टू अ प्लान
perpendicular to the screw axis. Although the helix angle is not commonly altered from the standard square pitch, such a change can have a significant impact on processing. The standard helix angle for most injection and extrusion screws is 17.6568 degree and is calculated as follows. A square pitch screw helix angle arc tangent of lead upon pi into diameter. हेलिक्स एंगल एक ऐसे तरीके का एक इस तरीके का एक एंगल है जिसकी स्क्रू एक्सिस के प्लान को के परपेंडिकुलर होती है, जो कि स्क्रू एक्सिस पे जो कि प्लान हमारा जो परपेंडिकुलर होता है उसके एंगल और स्क्रू फ्लाइट के बीच स्क्रू फ्लाइट के बीच के एंगल को हम हेलिक्स एंगल कहते हैं. Although the helix angle is not commonly altered from the standard pitch, such a change can have significant impact on processing. ज़्यादातर हेलिक्स एंगल को ज़्यादातर चेंज नहीं किया जाता है, ऑल्टर यानी चेंज नहीं किया जाता है. जो स्टैंडर्ड स्क्वायर पिच होती है, सच अ चेंज कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोसेसिंग. उस चेंज का प्रोसेसिंग पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल फॉर मोस्ट इंजेक्शन एक्सट्रूजन स्क्रूज इज 17.6568 डिग्री. ज़्यादातर हेलिक्स एंगल जो स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल है, ज़्यादातर इंजेक्शन और स्क्रूज का 17.6568 डिग्री होता है. हेलिक्स एंगल का फॉर्मूला दिया है आर्क टेंजेंट ऑफ लीड अपॉन पाई इंटू डायमीटर. A change to smaller helix angle hence more flight per diameter. छोटे हेलिक्स एंगल में ज़्यादा फ्लाइट टर्न्स होती है प्रति व्यास के, और इससे जो है एक्सियल मेल्टिंग लेंथ कम होती है. स्टिफर मटेरियल होते हैं वो ईज़िली कन्वे हो जाते हैं, और इससे जो मटेरियल जो जिस रेट से मटेरियल को कन्वे किया जाता है वो रिड्यूस हो जाता है. आइए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीज़ें. ट्रांजिशन जोन का मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन जोन एक संक्रमण या दबाव क्षेत्र होता है जहां चैनल की गहराई लगातार घटती है. वो प्लास्टिक कणिकाओं के कॉम्पैक्टिंग और हीटिंग यानी जलने को पूरा करती है. यहाँ सारी बची हुई हवा छोड़ दी जाती है, जो कि सिलेंडर द्वारा हीट सप्लाई और स्क्रू के रोटेशन का परिणाम है. सामान्य रूप से संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत लगभग स्क्रू की लंबाई का 25% होता है, जबकि वस्तु हॉपर के अंदर का क्षेत्र छोड़ती है तब वो स्क्रू को केवल आंशिक रूप से भरती है. लगभग 4 टन्स के बाद वस्तु जो बैरल को छू रही होती है वो कंडक्शन द्वारा पिघल जाती है. हीटिंग दो तरह से घटती है. एक है कन्वेक्शन से हीटर बैरल द्वारा, दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी को बदलना स्क्रू की घुमाव द्वारा उस एनर्जी में जो कि प्लास्टिक की शेयरिंग द्वारा बनती है. ये आपको समझ आया? इसका मतलब ये है कि हीटिंग जो है वो दो तरीके से बनती है. पहला होता है कि हीट के कन्वेक्शन के द्वारा, और दूसरा होता है
मैकेनिकल एनर्जी, स्क्रू को टर्न करने में जो मैकेनिकल एनर्जी लगती है उसको हम प्लास्टिक की शेयरिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। Since the same weight of material per unit cross section must flow through the whole length of the extruder, and since the bulk density of unmelted portion is less than that of melted portion, the unmelted portion must be moving at a faster rate. इससे मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। क्योंकि वस्तु का सामान्य वजन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन फ्लो करना चाहिए पूरे एक्सट्रूडर के लेंथ के थ्रू, और जो बल्क डेंसिटी है अनमेल्टेड पोर्शन की वो मेल्टेड पोर्शन से कम है, तो जो अनमेल्टेड पोर्शन है उसे बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहिए। मीटरिंग जोन एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। मीटरिंग जोन इज ऑल्सो नोन एज मिक्सिंग जोन, हेल्प्स फॉर होमोजीनियस मिक्सिंग ऑफ मटेरियल एंड एक्ट्स एज अ पंप रिमूविंग द मटेरियल प्लास्टिसाइज इन द ट्रांजिशन जोन। जो मीटरिंग सेक्शन होता है उसे मिक्सिंग जोन भी कहते हैं, जो कि मटेरियल्स की होमोजीनियस मिक्सिंग में काम आता है, और ये एक तरीके के पंप की तरह होता है जो कि उन मटेरियल को हटाने के काम आता है जो कि ट्रांजिशन जोन में प्लास्टिसाइज हुए रहते हैं। प्लास्टिसाइज का क्या मतलब है ये हम आपको अगले टर्न पर बताएंगे। L/D रेशियो ऑफ द फ्लाइटेड लेंथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्क्रू टू इट्स आउटसाइड डायमीटर। ये तो आपको बिल्कुल पढ़ने से समझ में आ गया होगा। रेशियो कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्लाइट लेंथ of the screw by its nominal diameter. Although several injection molding machine manufacturers now offer a choice of injection units, most injection screws use a 20:1 L/D ratio. L/D रेशियो सिंपल आप ये समझिए कि जो फ्लाइटेड लेंथ है स्क्रू की उसको आउटसाइड डायमीटर से डिवाइड कर दिया जाता है, वो रेशियो बन जाता है। और इसका जो रेंज होता है वो 20:1 होता है, लेकिन उसका रेंज 18:1, 24:1 और थर्मोसेट के केसेस में 12:1, 16:1 भी हो सकता है। L/D रेशियो को इस तरीके से हम समराइज़ कर सकते हैं कि जितना बड़ा L/D रेशियो होगा उतना बड़ा फ्लाइटेड लेंथ होगा। मतलब L/D रेशियो अगर बड़ा होगा तो फ्लाइटेड लेंथ भी बड़ा होगा। बाकी 3 पॉइंट, मोर हीट कैन बी यूनिफॉर्मली जनरेटेड इन प्लास्टिक विदाउट जनरेशन। अगर L/D रेशियो बड़ा है तो शेयर हीट ज़्यादा प्लास्टिक में बनेगी बिना किसी डिग्रेडेशन के। ग्रेटर द अपॉर्चुनिटी फॉर मिक्सिंग रिजल्टिंग इन अ बेटर होमोजेनिटी ऑफ मेल्ट। मतलब कि जो मिक्सिंग की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी और मेल्ट की होमोजेनिटी इससे और ज़्यादा बेटर, होमोजेनिटी यानी यूनिफॉर्मिटी यानी कि समांतरण मेल्ट का बढ़ जाएगा। और प्लास्टिक जितनी देर बैरल में होगा जितनी देर के लिए उतना ही ज़्यादा फास्ट साइकिल होगा बड़े शॉट्स का, लार्ज शॉट्स यानी वॉल्यूम। ठीक है, हम इसके साथ अंत करते हैं इस क्लास का। अगले टर्न पर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।